Good morning, dear students. How are you all? So your Sanila ma'am is back. Now today we are going to start our English lessons. So today we are going to do lesson 2 English. Okay. So this lesson is about friends. Okay. And the lesson name is Friends in School. So हम लोग friends के बारे में पढ़ने वाले हैं, school के बारे में पढ़ने वाले हैं. Okay. So the friendship and childhood in your school इस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. So before that, I want to ask you something that as I have told you earlier, and also Varsha ma'am has informed you that there is one art integrated project. So as I have told you, the art integrated project will be given after completing each lessons. So as you all know, our lesson 1 is completed now. So we have given you art integrated project. Okay. So I hope आप सबने उसे complete कर लिया होगा और अपनी अपनी class teachers को भेज दिया होगा. जिन बच्चों ने नहीं भेजा है, kindly send it as soon as possible because there is very less time. Okay. जैसे कि हमने कहा था आपसे कि आपको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा, उसके अंदर आपको कंप्लीट करना है. बट दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड एंड आर हैविंग सम जेन्युइन रीजंस, so we'll consider it. So complete it as soon as possible and send it to your respective class teacher. Okay. After that, जो बच्चों को नहीं पता है या न्यू एडमिशन्स है, once again I want to explain about this. So art integrated project is basically a project given after completing each lessons in each subject. Okay. जैसे जैसे आपका एक एक लेसन कंप्लीट होता जाएगा, आपको उस लेसन से रिलेटेड कुछ भी आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट दिया जाएगा. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ्स में ऑलरेडी मिल चुका था लास्ट टू लास्ट सैटरडे, तो आप लोगों ने उसे कंप्लीट किया. वेरी गुड. अब इंग्लिश का भी दिया है, काफ़ी बच्चों ने कर लिया है. जिनने नहीं किया है वो लोग भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें इसे. ठीक है. सो ऐसे वन बाय वन आप लोगों को कंप्लीट करना है और आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स भेजने हैं. ठीक है. आपको हर लेसन के बाद हर सब्जेक्ट में मिलेगा. इट्स नॉट ओनली फॉर इंग्लिश और मैथ्स, इट्स फॉर हिंदी, इट्स फॉर ईवीएस, सारे सब्जेक्ट में आपको मिलेगा. ठीक है. सो आप सबको इसे कंप्लीट करना है ऑन टाइम और इसके मार्क्स ऐड होंगे. जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, द मार्क्स विल बी एडेड इन योर सेमेस्टर. आई डोंट नो इन विच मैनर वी आर गोइंग टू ऐड. We will explain you later on, but right now I just only I just can tell you that the marks will be added in your semester result. Okay. So make it sure ki you all complete this on time. Okay. So yes, now we'll start our reading. So lesson 2, all of you open your book, take out page number 15. See page number 15, Friends in School. Okay. So I'll write down the lesson name. Lesson 2, Friends in School. Okay. So lesson 2 is about Friends in School. So आपको इस टॉपिक से ही पता चल रहा है कि हम फ्रेंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हम स्कूल में बनाते हैं, है ना. हम कैसे फ्रेंड्स बनाते हैं, हाउ वी शुड बिहेव विद देम, हाउ वी शुड बी विद देम, राइट. So all these things we are going to learn in this lesson. Okay. So it is going to be very interesting. So fold your hands everyone, sit straight and listen to me carefully. Once I will stop reading, I will explain the lesson. ठीक है. First what you have to do is you should keep your textbook on your table with a pencil in your hand. ठीक है. And whenever I ask you to underline the word, you have to underline the word. Okay. So slowly ma'am will read. Will take at least 2 days to complete the lesson. Slowly we'll read. It will be easier for you to understand. Okay. So yes, I will start reading. So the first part is warm up. Okay, there is one warm up given. Pack your school bag, circle the things that you carry to school. Can you all see this warm up exercise? This we are going to do first. Okay. So सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैम के साथ साथ ये वार्म अप एक्सरसाइज करना है. So all of you take out your pencil and look into your book. ठीक है. So the first thing given is dog. तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पैक योर बैग एंड सर्कल द थिंग्स दैट यू विल कैरी टू योर स्कूल. तो आप अपने स्कूल बैग में स्कूल क्या क्या चीज़ें ले जाते हो उन चीज़ों को सर्कल करना है. तो आपको कुछ चीज़ें लिस्ट की हुई है, उनमें से उन चीज़ों को सर्कल करना है जो आप स्कूल ले जाते हो. सो द फर्स्ट थिंग गिवन इज एनिमल. ओ माय गॉड, देयर इज अ डॉग, पेट डॉग शोन इन देयर बुक. सो क्या हम पेट डॉग्स को बैग में रख के स्कूल ले जाते हैं? नो.
सो उन्हें सर्कल नहीं करेंगे आप, ठीक है। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. The next is books. 3 books are shown in your book, right? 3 books here. Can you see this? Yes. तो क्या हम books को लेके जाते हैं स्कूल बैग में? Yes, we take that to our school. So circle your books. ठीक है? तो जो books बना हुआ है उसके चारों ओर ऐसे सर्कल कर दो, ठीक है। ऐसे books बने हुए हैं आपके, ऐसे books रखे हुए हैं, उसको सर्कल कर दो, ओके, जस्ट लाइक दिस, सर्कल इट, ओके। इसके बाद आपको पेंसिल बॉक्स दिया हुआ है. द थर्ड इज पेंसिल बॉक्स. कैन यू सी दिस? यस, वी टेक पेंसिल बॉक्स टू आवर स्कूल, है ना, वी कैरी इट इन आवर स्कूल बैग. यस, तो सर्कल योर पेंसिल बॉक्स. इस तरह से सर्कल कर दो पेंसिल बॉक्स को. पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब रखते हैं हम उसमें, है ना, तो आप उसको एक बार सर्कल कर दो. Then the fourth is tree. A tree is shown here, right? So you take tree to your school. Can you carry a tree in your bag? No, it's very big, no. Also, tree is not a need, है ना. आपको स्कूल बैग में क्या क्या कैरी करना होता है? बुक्स, पेंसिल बॉक्स, वाटर बॉटल, टिफिन, राइट. ट्री कौन कैरी करता है? नो वन, राइट. सो ट्री को ब्लैंक छोड़ दो, उसको कुछ नहीं करना है. The next is tiffin and water bottle. Can you see this? Tiffin and water bottle. So circle tiffin and water bottle. You take tiffin and water bottle to your school? Yes. So circle tiffin and water bottle. Yes. The next is house. Do you take house to your school? No. Yes. तो tree को blanks छोड़ दो. Tree को कुछ भी house को blanks छोड़ दो. House को circle नहीं करना. Okay. Yes, and the last one is bag, school bag, right? So yes, we take school bag to our school, है ना? We carry all these things in our bag only. So yes, circle the school bag also. तो school bag को भी circle कर दो. Is that clear, everyone? So this was your warm up exercise. मैं एक और बार बता देती हूँ कि किस किस items को हमने circle किया है. So yes, the first one dog. Yes, no. We don't take dog to our school, तो dog को plain छोड़ दो. The next is books. Books को circle करो. The next is pencil box. Pencil box को circle करो. After that tree. Tree को blanks छोड़ना है. Next is tiffin bottle. इसको circle करना है. House को blanks छोड़ना है. Then school bag. School bag को circle करना है. So what all things we have circled here? Books, pencil box, tiffin bottle and school bag. These 4 items you have to circle in your book. Okay? So this was your warm up exercise. Now we will move on to the lesson. So look into your book, everyone, and keep your finger where ma'am is reading. Read this story. This is Joe. Joe is a fall. That is Snowy. Snowy is a kid. They are ready to go to school. So here it is shown that Joe is a foal, है ना. Foal means horse का baby. Horse baby को क्या बोलते हैं आप? Foal. We call foal. Okay. Then kid. Kid means rabbit का baby. Okay. So a kid is here and a foal is here. They both are ready to go to school. They both are ready to go to school. Yes. Now take out page number 16. Open page number 16. In page number 16, they are walking to the school. It is their first day in school. Now see, all the baby animals are walking together and they are going towards their school, है ना? Because it is their first day in the school, है ना? It is their first day in the school. School में उनका पहला दिन है. सारे baby animals एक साथ walk करके school की तरफ जा रहे हैं. Okay? Yes. Now the next is the bell rings. They go to their classroom. They sit in their classroom and read their lessons. Bell rings means आप लोग जब स्कूल में आते हो, फर्स्ट में जैसे ही आप लोग आते हो, आप लोग ग्राउंड में खेल रहे होते हो, घूम रहे होते हो, जैसे ही आपका बेल रिंग होता है तो आप लोग क्या करते हो? क्लासरूम में दौड़ के जाते हो, राइट. सो वैसे ही सारे बच्चों ने क्या किया, जैसे ही बेल रिंग हुआ वो लोग अपने क्लास में गए एंड दे सिट इन देयर क्लासरूम एंड रीड देयर लेसन्स. और वो जैसे ही क्लासरूम में जाके बैठे, उन्होंने अपना लेसन रीड करना स्टार्ट किया. ओके. यस.
After that, Mr. Humpty is their teacher. He is an elephant. अब देखो क्या हुआ, जैसे ही बेल रिंग हुआ, बच्चे बैठे क्लास में, तो उनके टीचर आए. उनके टीचर कौन थे? मिस्टर हम्प्टी, एंड ही वाज एन एलिफेंट, है ना. मिस्टर हम्प्टी कौन थे? एक एलिफेंट थे. सी हियर अ पिक्चर इज शोन ऑफ दिस टीचर, है ना. मिस्टर हम्प्टी इज एन एलिफेंट एंड ही इज देयर टीचर. ओके, देन after the lessons they have lunch. They finish their lunch quickly. After lunch, Joe, Snowy and all other baby animals go to play. After the lessons they finish their lunch quickly. उन लोग ने क्या किया, जैसे ही उनका लेसन हो गया, वो लोग ने अपना लंच करना स्टार्ट किया. They had their lunch very quickly and they went to the playground to play. Okay, so all the baby animals were reading the lessons, and after finishing their reading they had their lunch quickly and then they went to play. As you guys used to do last year, आप लोग भी स्कूल आते थे, आप लोग लंच में क्या करते थे? जल्दी जल्दी से लंच करके खेलने जाते थे, राइट. यू यूज्ड टू प्ले गेम्स इन प्लेग्राउंड और नियर द स्टेज, राइट. वैसे ही जो स्नोई और बाकी जितने भी बेबी एनिमल्स थे, उन लोग ने अपना लेसन्स कंप्लीट करके लंच फिनिश किया क्विकली. उसके बाद दे वेंट टू प्ले एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग लाइक दे वर जंपिंग, दे आर रोमिंग, दे आर रनिंग ऑल ओवर अराउंड, राइट. सो दैट टाइम जो आस्क्ड स्नोई, कैन आई बी योर फ्रेंड. तभी जो ने स्नोई से पूछा, कैन आई बी योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ. स्नोई सेज, नो यू आर टू बिग. स्नोई ने क्या कहा, नहीं तुम बहुत बड़े हो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता, है ना. फॉल वॉज लिटिल टॉलर दैन स्नोई, है ना. स्नोई छोटा सा था, क्यूट सा छोटा लिटिल रैबिट है, और फॉल बड़ा है. बेबी फॉल, इवन बेबी हॉर्स आर टॉलर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर बेबी एनिमल्स, है ना. क्यों? क्योंकि हॉर्स पहले से ही थोड़े टॉल होते हैं, है ना, विद देयर लॉन्ग लेग्स. सो स्नोई ने क्या कहा कि तुम बहुत बड़े हो तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता. ये सुनकर जो सिट्स अंडर अ ट्री, स्नोई जंप्स अराउंड. ये सुनकर जो तो अपसेट हो गया एंड ही सैट अंडर अ ट्री एंड स्नोई वाज प्लेइंग. ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, सो ही वाज जंपिंग अराउंड एंड ही वाज प्लेइंग, है ना. स्नोई क्या कर रहा था? स्नोई को कुछ नहीं लगा बुरा, तो वो तो खेल रहा था, वो इधर उधर कूद रहा था, ही वाज प्लेइंग ऑल अराउंड. बट जो बहुत अपसेट था, उसके कोई दोस्त नहीं थे. ही वाज वेरी सैड एंड ही वाज सिटिंग अंडर अ ट्री. अ स्पाइडर कम्स डाउन एंड सिट्स ऑन स्नोईज बैक. तभी एक छोटा सा स्पाइडर आया, है ना. आपकी बुक में देखो स्पाइडर दिखा रहा होगा, जहाँ स्नोई बैठा हुआ है उसके पीछे देखो एक स्पाइडर है, ऐसे लंबा सा एक रस्सी दिख रहा होगा आपको, जो स्पाइडर का वेब होता है ना. उस पे से देखो एक स्पाइडर आया है नीचे स्नोई के शोल्डर पर बैठने के लिए, राइट. सो वो जैसे ही आया और स्नोई के बैक पर बैठा, स्नोई डजंट लाइक इट, है ना. स्नोई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, स्नोई घबरा गया. तो देखो नेक्स्ट पिक्चर में आपको नेक्स्ट पेज पे, दैट इज ऑन पेज नंबर 17, आपको दिखाया हुआ है स्नोई कितना डरा हुआ है, राइट. स्नोई का फेस देखो कितना डरा हुआ है. जैसे आप लोग के ऊपर कॉकरोच या छिपकली या फिर ऐसी स्पाइडर वगैरह आप लोग देखते हो तो आप लोग भी डर जाते हो, है ना. स्पाइडर, लिज़ार्ड और कॉकरोच और like something like that, whenever you see you got scared, right. So similarly स्नोई भी उसे देख करके डर गया, है ना. तो वो एकदम से ऐसे घबरा गया. तो वो देख करके स्नोई क्या हुआ, स्पाइडर को देख करके डर गया, राइट. सो आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे. अब आगे क्या हुआ ये हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे. ओके, सो आई विल रीड इट वंस मोर सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू, है ना. सो सबसे पहले हम लोग एक बार ऑल गो थ्रू कर लेते हैं इन शॉर्ट, ठीक है. सबसे पहले क्या हुआ, जो और स्नोई रेडी होकर स्कूल की तरफ जाने लगे. तो वो जैसे ही स्कूल की तरफ जाने लगे, उन्होंने देखा और भी बेबी एनिमल साथ में आ रहे थे. वो सब स्कूल का पहला दिन था उनका, तो वो लोग सब कहाँ जा रहे थे, स्कूल की तरफ जा रहे थे. Once they reached school, the bell rang and they all went to their classrooms, है ना. After entering their classrooms, they sat on their respective places, their benches, and they started reading the lessons. After completing the lessons, they had their lunch quickly and they went to play in the playground. There, all baby animals were playing, jumping, running, but Joe was very upset because he was not having a friend. So Joe asked Snowy that, can I be your friend? But Snowy said, no, you're very big. I can't be your friend. So Joe got upset and he sat under a tree. But Snowy, he was very happy. He was jumping all around, he was playing. And suddenly one spider
came up from the tree and sat on Snowy's back. Seeing that, Snowy doesn't like it and he got scared, right? So सबसे पहले क्या हुआ, जो और स्नोई स्कूल की तरफ जा रहे थे रेडी होके, सारे बेबी एनिमल्स जा रहे थे। जैसे ही वो लोग स्कूल पहुंचे, बेल रैंग हुआ, वो लोग अपने क्लासरूम में गए। देयर दे सैट एंड स्टार्टेड रीडिंग लेसन। वो वहाँ बैठ के अपना लेसन्स पढ़ने लगे और जैसे ही उनका लेसन कंप्लीट हो गया, वो लोग कहाँ गए, वो लोग लंच किए और क्विकली वो लोग प्लेग्राउंड चले गए वहाँ खेलने के लिए। सारे बच्चे खेल रहे थे बट जो नहीं खेल रहा था वो बहुत सैड था। क्यों? क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। तो उसने स्नोई से पूछा, क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? तो स्नोई ने कहा, नहीं, तुम बहुत बड़े हो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। तो जो ये सुनकर अपसेट होके एक साइड में ट्री के नीचे बैठ गया। लेकिन स्नोई वो तो बिल्कुल अपसेट नहीं था। तो वो क्या कर रहा था, वो खेल रहा था, वो कूद रहा था, पूरे ग्राउंड में मज़े कर रहा था। तभी अचानक से पेड़ पे से एक स्पाइडर नीचे आया, मकड़ी, और जो स्नोई के पीठ पर बैठ गया। ठीक है, और वो जैसे ही उसके पीठ पे बैठा, स्नोई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो घबरा गया, वो डर गया। और उसके बाद क्या हुआ ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो टिल दैट यू हैव टू रीड दिस लेसन एटलीस्ट फॉर 3 टाइम्स एज फार एज मैम हैज टॉट यू। ठीक है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आपको उतना लेसन 3 टाइम्स तो मिनिमम आप लोग उस चीज़ को रीड करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे इस लेसन को और मैम एक और बार आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप लोग बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अब तक जितना पढ़ाया है इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? सो अब आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एवरीवन। गुड डे एवरीवन।